Hi guys! Today we're going to have a session with Anuja Kapoor, who's a criminal psychologist. We'll just wait for a while before we add her, and let's have a great session today. Hi Yash, hi Nikita, hi Pankaj. Hey guys from On His Own Trip, Binding First, Ritika, hi Mukund, hi Jitu Guru. We'll be adding Anuja ma'am in a couple of minutes, so please bear with us till then. It's going to be a great session today. Hi Jitu. Hi Sushi. Hi Manpreet. Hi Khushi. Thanks for joining, guys. We're going to have a session with Anuja Kapoor, who's a criminal psychologist, and it's going to be great fun tonight. Let's have a great evening together. Hi Aryan. Hi Priyanshi. Yeah, so I'll join Miss Anuja and we will take it from there, guys. Let's have a great session. Yeah, so just apologies for that. Anuja is going to join in a couple of moments. Hey Anuja. Hi, how are you? I hope my camera is okay because I don't know. If you need me to set Yeah, it yeah. somewhere, so No, I think that seems all right and we're good to go. yeah. Yeah, this might be a bit better. Okay. Great. We have a lot of people joining in. Thanks, guys. We're going to have a great session. If I may take this opportunity to formally welcome Miss Anuja. She's a criminal psychologist. She's an advocate, a counselor, a social activist, and she's done great service to the nation. We are so glad to finally have you tonight. And let's looking forward to a great session together and getting to know what you do and how you are in person. Thank you. Sat Sri Akal, Jasveer, and good evening to each one of you. I hope this session goes wonders because I think we have a great audience. And Jasveer, I've heard about you. You're a great anchor, and Thank you it so is going to much. be a beautiful tea with you, and I hope a lot of questions are there for to be talked to me about it. So I think अच्छा लगेगा आज आप Absolutely. लोगों के साथ ये सफर अच्छा लगेगा. Ekdam, zarur. So very rightly put. We're not going to we'll try to make this as fun as possible. So before dwelling into the Yes. serious end, I'm really curious to know how are you in person? Like who is the Anuja Kapoor apart from her profession? If you can tell us something about it. So Anuja Kapoor in person is a very, very bubbly person. Um, So when nobody is at home, जब घर पे कोई नहीं होता तो मैं वो लड़की हूँ जो अपने बेड के ऊपर उछलती भी हूँ और when I'm really happy और कुछ केस जीत लेते हैं या up और उदास भी हो जाती हूँ तो चुप करके बाथरूम में जाकर shed a tear or so. But overall, I'm a very, very strong-minded woman, very strong-minded and a very well-powered woman. Yes. So I have both shades. I'm a devil also, and I'm human also. So so yes, that, it's that both that's ways. that It's both That ways. sounds very interesting in the first place. In fact, more interesting than what we have from your profession. So, again, okay, I have to also ask before we go further, you actually, the actual age, I'll let the audience guess, but you look so young and, you're doing so many things. How are you so young and what is the secret behind all of this?
Thank you, Jasveer. Coming from you as a young personality, this is why I'm young. मेरे आसपास के जो लोग हैं मुझे बूढ़े होने ही नहीं देते. So this is one thing, yeah, because you know, you are known by the company you keep. और मेरे आसपास सारे नौजवान हैं और मैं इसलिए कहूंगी कि नौजवानों में आप खुद जवानी आपकी वापस आ जाती है और मेरी तो गई नहीं थी तो वापस आने वाली बात ही नहीं है. So yes, yeah, it's a long go. Yeah. I hope I should not reveal my abhi I think you're going to do that. Yeah. So, yeah. Great. So this is like very interesting, like dwelling to something thoda sa serious. Like, can you tell us how this entire journey started? Because मैंने तो कभी पहले नहीं सुना है कि I've never heard of a criminal psychologist. And when we Google your name, you're like, you've done so many landmark cases and it's been such a long time. So how did it all start and what was it like? So this journey was not an easy journey. बहुत tough रही है because आप जानते हैं कि इंडिया में एक औरत अगर अपनी दहलीज को लांघती है तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है, एक हिस्ट्री होती है. और मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत लोग आई वुड से मेरी बैकबोन बने और जिम्मेदार. कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत हर्ट किया और कुछ लोग मेरे साथ आके खड़े हुए. तो ये जर्नी वही है, गिव एंड टेक की रही है. बचपन से मैं जैसे बताया कि बहुत डायनामिक और चुलबुली काइंड्स रही हूँ. आई एम लाइक अ फ्लिप, यू नो, आई फ्लिप्ड अराउंड. और मुझे शायद एक कहते ना होत हार के होत, वो एक हिंदी में एक कहावत है, होन हार के होत चिकने पात. So I think something like this. What I clearly remember is like my mother, she told me कि there are time रहती थी और शायद क्योंकि मैं हमेशा से एक क्वेश्चन पुट करती आई हूँ, why, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. और यही जन्म हुआ शायद मेरा, जहाँ पर मैं बहुत डीप थिंकर बन गई. मुझसे कोई भी सवाल करता था या मैं किसी को भी परेशान देखती थी, बात करता था, तो मुझे ये एहसास होता था कि ये जो कन्वर्सेशन चल रही है ये ऐसी क्यों है. अगर मैं अपने पेरेंट्स को भी इसी आर्ग्यूमेंट में देखती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सुलह करा लूं, बीच में आ जाऊं, कोशिश करूं, पूछूं कि क्या बात है, यू नो. सो आई वाज ऑलवेज काइंड अ मीडिएटर काइंड ऑफ अ पर्सन, you know. ये नहीं कहूंगी I'm a scorpion. I don't know how many people know about it. So I'm a scorpion and actually I'm a cut. You do. Hey, my high five. So and hi to all the scorpions जो audience में हैं. Yeah. So you know, so yeah, so I'm actually a cusp Libra Scorpio because I'm 24th October, so Libra Scorpio. So what I say is मेरी personality हमेशा से ऐसे ही रही कि I wanted to come in between, मतलब मैं बीच में आऊंगी and I will take a path. अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है I will intervene and I will bring that thing forward. मैं वो इतनी बड़ी लाइन की वेट नहीं करूंगी, मैं आगे आऊंगी और देखूंगी कि हिंड्रेंस कहाँ है और जितने भी रोड़े हैं उनको हटाने की कोशिश करूंगी ताकि मेरा रास्ता आसान हो जाए. तो उस रास्ते में जितने लोग हैं वो बेनिफिट हो जाते हैं. सो आई हैव ऑलवेज दिस कि यू नो, बचपन से दिस वाज काइंड ऑफ थिंग. अगर कहीं पर कुछ हुआ है तो आई वुड ट्राई टू कम फॉरवर्ड एंड आई वुड ट्राई टू द अदर पर्सन ताकि यू नो आसपास में जो सैडनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए. और देयर आर पीपल अराउंड, जैसे कि क्योंकि मेरे यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड्स हुआ करते थे तो मेरे को हमेशा से लगता था कि काम करते थे तो मैं चुप करके जाती थी किचन में और किचन में जाके मैं देखती थी एंड आई यूज्ड टू बिकम दैट डिटेक्टिव. सो आई यूज्ड टू गो इनसाइड स्लोली और मैं जाकर के कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. सो उस टाइम पे यूजुअली कुछ ना कुछ होता था. कोई जैसे कि कोई चिप्स उठा रहा है या कुछ उठा रहा है तो मैं उसके पीछे जाती थी और मैं जाके देखती थी. फिर मैं उसको कहती थी खा रहा है, अच्छा जाके मम्मी को बताना, मम्मी उसने ना
भगवान उठा लिए, नहीं वही काम कर रहा है. So my mother was कहती तू ना किसी दिन घर में आग लगाएगी दोनों के बीच में. कोई काम नहीं करेगा, हमारे घर में कोई काम नहीं करेगा. और मैं कहती थी मम्मी मैं तो आपको बता रही हूँ कि उसने ये काम किया, उसने उठाया सामान, बताओ उसको, बताओ मत करो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को. इस लड़की ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, देखो किसी के पीछे पड़ती रहती, लड़ाई करा देगी. तो उसके बाद फिर when I started growing up, तो मुझे नैन्सी ड्रू बहुत पसंद आई, और नैन्सी ड्रू पसंद आने लगी, फिर मुझे मिल्स एंड बून्स पसंद आने लगी. So I was more of a sexy guy, and emotional also, but happy and detective kind, ऐसी मुझे बहुत पसंद आता था. So और मतलब I always had this imagine, मैं ना किसी ऐसी वाली, उस टाइम पर हम लोग CID वगैरह भी आता था, करमचंद का वो आता था, कैरेट खाता रहता था, क्या नाम था उसका? So ma'am, science, I don't know. I think there is a slight network issue. Just give us a couple of seconds, guys. Can you hear me fine, ma'am? Yeah, so the video and the audio aren't matching on your end. Yeah, it moved right now. Just Yeah, are you able to hear me? Is the video okay? Yeah, I think should I try connecting to you again? I'll just try connecting to you again, ma'am. I'll send you a request. Just hang on for a couple of seconds, guys. We'll reconnect in a moment. It's okay now? Just 1 minute. Is it okay? I'll just send you a connection request in a moment. Just give us 1 minute, guys. I'll connect ma'am again, and we'll just start off, resume in just a couple of seconds. It's been so much fun right now, and let's continue with this in a great manner. Ma'am is connecting. We're waiting for connection, and it should be ready in a couple of seconds. Hello. Yeah, the audio is not there, ma'am. I think it's still buffering for some time. Yeah, I think it's good okay to go. Yeah. These things that just happen. So yeah. We need to be technology nobody can prepared. Help. They just happen. They keep happening. Yeah, that's completely all right. Part of life. Nobody can happen. So then 10th, yeah. Is it still so hang? We were at your journey, and we were like waltzing through the great fun kid that you were, and it was amazing to hear that. Can you now tell us something about, about this entire episode? You were a detective, these traits that helped you become who you are right now. And this term criminal psychology, what is it? Can you tell our audience and me something about, what is this criminal psychology about?
criminal psychology outside India are being known as criminological psychologists. So they are the ones who take an interview with the inmates, the ones who are at the death. तो वो लोग जो लोग डेथ रो पे, डेथ पेनल्टी पे, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, डेथ पेनल्टी पर यहाँ पर होते हैं, और उनसे वो मरने वाले अभी कुछ टाइम में, तो उनसे जाकर रिसर्च हुए, उनसे बात करी जाती है, ये उन्होंने इतना बड़ा हिट क्यों किया, क्या रीजन था पीछे, उसको गैदर करके वो चीज लॉ मिनिस्ट्री को दिया जाता है ताकि उस तरीके के लॉज का गठन हो, ताकि जो लीगैलिटी में हमारे यहाँ पर कमी ये आती है कि हम लोग इस तरह के इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करते हैं, और क्योंकि इंटरव्यूज कंडक्ट होने चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारे में वो लॉज ह्यू एंड क्राई पर या पब्लिक नहीं बनते, वो डिमांड पर बनते, क्रिमिनल्स को रिफॉर्म कर सके और हम से बात कर सके, और उनके लिए ये देखा जाए कि किस तरीके से ऐसे लॉज हैं जहां पर हम हेल्प कर सकें, सोसाइटी की वेलबींग के साथ हेल्प कर सकें. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो जो चीज थी वो आनी बहुत जरूरी है. और अभी जब आपको मालूम है, रिसेंटली जब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया आपके कॉन्विक्ट्स के साथ, तो इतना बड़ा शोर हो गया, तिहाड़ जेल के अंदर लोग की एंट्रियां बंद हो गई, जर्नलिज्म, क्योंकि कई लोग अंदर जाते थे, बात करते थे, कई लोग सेल्फी भी खींचते थे. तो एक्चुअली लोगों के यहाँ पर इंडिया में थोड़ी नजरिया अलग है क्रिमिनल से बात करने का. मी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं, क्योंकि जो मेरी सोच है वो ये, क्राइम से घृणा कीजिए, क्रिमिनल से नहीं. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर आप क्रिमिनल से घृणा कर रहे हैं तो क्राइम नहीं रोक पाएंगे. तो क्राइम रुकता नहीं है, वो कम होता है. उसका रेसिडिविज्म जो होता है वो होता है कि बार बार होना, और वो भी बहुत चीजों में है. मेरा लॉजिकल इंडियन ने लिया था, इसके ऊपर बहुत बड़ा इंटरव्यू लिया था इससे रिलेटेड, कि क्राइम और किस तरीके से क्रिमिनल माइंड, ये किस तरीके से इसका गठन होता है. एक जो आम आदमी है वो क्रिमिनल कैसे बन जाता है, या क्रिमिनल पैदा होता है, या उसको सोसाइटी क्रिमिनल बना देती है. सोशियोपैथ, साइकोपैथ, इनके बीच में क्या फर्क है, से बीच में क्या फर्क है, सेक्स ऑफेंडर्स कौन होते हैं. मैंने अपनी कई टेड टॉक्स में, और अभी आधा टेड टॉक्स आएंगे आज, तो आपके साथ भी है ये टेड. सो देयर आर कई जहां पर ये बात करी गई है कि सोसाइटी ने क्या क्रिमिनल को जन्म दिया है, या हमारा कहीं ना कहीं जेनेटिक्स उसके अंदर काम करता है, क्या उसके जो पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्या बायोलॉजिकली, जैसे कि मैंने कई बार बताया है, बायोलॉजिकल के साथ आता है आपका ब्रेन मैपिंग में, तो क्या प्रोफ्रंटल लोब जिन लोगों का वीक होता है या बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, या किसी पर उनका एक्सीडेंट हो जाए तो उस टाइम पर अगर गया, तो क्या उस वो अर्जेस, प्रोफ्रंटल लोब, मैं बता दूं अपनी ऑडियंस को कि प्रोफ्रंटल लोब यहाँ होता है, और ये वो एरिया है दिमाग का कि जहां पर अर्जेस उसको कंट्रोल कर रहा है. जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, और 16 से 18 के बारे में बात है, और हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी इंडिया इस चीज को समझती नहीं है, तो उन्होंने 16 से 18 का गठन कर दिया. मेरे लिए अगर आप पूछे तो जुवेनाइल जस्टिस के अंदर शराबें, ये जो उनकी अर्जेस हैं, आप उनको रोक नहीं सकते जब तक उनका प्रोफ्रंटल लोब पैदा नहीं होगा. ये सबसे 22 की उम्र में आखिरी, ये वो जो आखिरी में डेवलप होता है, सबसे पहले जाता है. 60 to 65 की उम्र में निकल जाता है. कहते हैं बच्चा और बूढ़ा एक समान. अब आप बच्चे को 16, 18, 19, 20, 21, 22 में जाकर उसको पता चलेगा. इसीलिए दिल्ली के लिए मैंने लड़ाई करी इस चीज के लिए कि चीफ जस्टिस गीता मित्तल मैम हमारी फॉर्मर एक्टिव चीफ जस्टिस थी, और उन्होंने ये बात के बारे में भी बात हुई थी कि 25 years ऑफ एज शुड बी द ड्रिंकिंग एज, क्योंकि उस टाइम पर अर्जेस डेवलप होने के लिए केंद्रित कर ले प्रोफ्रंटल लोब बन चुका होता है. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. बहुत छोटी छोटी चीज लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए ड्रग्स है, पॉर्न है. पॉर्न आप देख रहे हैं, पर पॉर्न को देखना तो उत्तेजित होना, और उसके साथ उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में वो ध्यान रखना, वो दैट इज अ बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. पेरेंट्स यहाँ पर क्योंकि सेक्स के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, सेक्स एक्टिविटीज को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बच्चों को नहीं बता पाते हैं, तो कहीं ना कहीं राज रह जाता है. तो वो बच्चे जो है वो पॉर्न की तरफ जाकर उससे हेल्प मांगते हैं.
उन्हें भी शर्म आती कि हम माँ बाप से कैसे पूछें, या शादी की रात पर ही पॉर्न की पिक्चर्स दी जाती हैं और वहां पर उस वक्त में बात की जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस एक सोसाइटी का रोल भी कितना जरूरी है। क्रिमिनल माइंड अगर कहीं जा रहा है तो चारों तरफ से उसको खाना मिल रहा है, चारों। जैसे अभी आप 2020 को देख रहे हैं हमारे, कि यहाँ पर चारों तरफ से हमारे ऊपर विपदा है, चारों तरफ से कोई एरिया नहीं छूट रहा, जो चीज है चीज छूट नहीं रही है, सारी तरफ से हम लोग इसके अंदर आ रहे हैं। सो अब तुम कहां पर आती है, वो ये है कि आप ये देखिए कि इससे ज्यादा हमें समझने की जरूरत है। और विक्टिमोलॉजी, रिसेंटली मैं फाउंडर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर कोरिया के अंदर विक्टिमोलॉजी का एक हिस्सा हूँ, बोर्ड मेंबर में एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पर हम लोग विक्टिमोलॉजी क्या है, ये भी इंडिया में नया चीज है। तो जब मैं पायनियर बनी क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, सोशल एक्टिविज्म एंड विक्टिमोलॉजी के साथ, एंड आई एम ऑल्सो एन ऑनरेरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर। मैं ऑनरेरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर हूँ, जहां पर मेरा थाना पड़ता है मॉडल टाउन। तो यहाँ पर मॉडल टाउन मेरा थाना पड़ता है, यहाँ पर मैंने केसेस को देखती हूँ और इंटरवीन करती हूँ, क्योंकि ये वो बैच है जो मुझे अलाउ करता है मेरे साथ वाले घर में अगर कहीं चाइल्ड लेबर है। और हाय, आई डोंट नो, मेरा क्या फिर से अड़ गया है क्या? नहीं, आवाज आ रही है, थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई बात नहीं। लाइक बहुत बहुत अच्छे, वो दिस इज सम रियली गुड विजडम दैट वी आर गेटिंग। हाँ हाँ, इट्स बेटर नाउ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे पता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, अभी इन दिनों डोमेस्टिक वायलेंस बहुत एट राइज था, तो उस पर कॉल जाती, तो एफआईआर करवाने के लिए मेरी हेल्प होती है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं। अभी एडीएम जैसे मैं क्रॉस कर रही थी, तो एडीएम साहब ने जब मुझे पास दिया, तो वो जानते थे ऑलरेडी कि मैं एसपीओ हूँ। तो मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चीजें हैं, मेरा रिकॉर्ड है। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर, बॉन्डेड लेबर के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सब मेरे बहुत करीब है। विक्टिमोलॉजी विक्टिम्स, निर्भया शक्ति मेरा एनजीओ। तो उसके थ्रू मैं क्या करती हूँ कि एनजीओ होने की वजह से मैं पीआईएल्स डाल पाती हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और लोगों के राइट्स के लिए बात कर पाती हूँ। विक्टिम राइट्स, विक्टिम्स के लिए बहुत बात करी है मैंने। विक्टिम्स के अंदर अभी आप ये भी देखें कि हौस खास के अंदर पब्स थे जो, और वो इलीगल चल रहे थे, वो मेरी पीआईएल है कोर्ट के अंदर। गीता मित्तल मैम के थ्रू वो चीज मैंने इसको भी बंद करवाने की कोशिश करी। तो अब देखिए, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जजेस का क्या बहाव है उस तरफ, वो डिसाइड करेंगे। मेरा काम है मैं एविडेंसेस लेकर आऊं, एज अ लॉयर, एक्टिविस्ट, क्राइम से रिलेटेड चीजों को रखूं, बात सामने, चीजों को लेकर आऊं, ये मेरा काम है, ये आप लोगों का काम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशंस, फोरेंसिक्स, वो उनका काम कर सकती हूँ, बट मेरी भी एक लिमिट है। तो जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं आगे आके बात करती हूँ, चीजें करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा जब वो एक छोटी सी स्माइल आती है चारों तरफ लोगों के, और केस जीतती हूँ। और पता है इस बड़ा है कि वकील लोग ना पैसा कमाते हैं, शायद मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, तो मनी मैटर इज अ डिफरेंट इशू फॉर मी। वो जो एक स्माइल आती है ना जब मैं जस्टिस लेकर आती हूँ, पता है वो जितना पैसा लगता है ना, या जहां पर भी होता है, और वो जो हम लोग लड़ाइयां लड़ते हैं ना, सब खत्म हो जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े वाला 23 साल का है, और अभी इस वक्त वो सिडनी में है, और ही इज वर्किंग विद डिलॉयड, और आ नहीं सकता अभी। और जो छोटा है वो 20 साल का है, और वो यहाँ पर है, यूएस में था, और ही वाज इन यूनि कैलिफोर्निया अर्बाइन, यहाँ से पेपर देगा। एंड आई एम मैरिड फॉर 24 years, सो अगले साल इट विल बी माय 25th एनिवर्सरी। सो यस, I'm this year I'm going to turn going to turn 45 or something. So it is an amazing journey where आप खुद बड़े नहीं हो रहे हैं, आप अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी देख रहे हैं बदलते हुए, अब देख रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट होते हुए एक सबसे ऊपर हूं मैं, माँ और एक औरत। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे लिए कि
मेरे बच्चे जो निकल कर आए और जो मैंने अपने बच्चों को सोसाइटी में दिया कि दोनों लड़के रहे हैं, और यहाँ पर लड़के और लड़कियों का बहुत हम लोग बात करते हैं क्योंकि इसी में ही दुनिया घूम गई। हम इसी को ही नहीं निकाल पाए। और तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि मैं अपने बच्चों को बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इस सोसाइटी में कैसे भेजती हूँ। अगर वो मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो किसी औरत की इज्जत नहीं करेंगे। तो ये चैलेंजेस हैं, मेरे हर मोड पर हर वक्त आए हैं। आगे आने वाले टाइम पे ये बहुओं वाला घर है, डॉटर इन लॉज वाला घर है। तो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मैं खुद माँ नहीं दिखती, मुझे ऐसा लगता है कि डॉटर इन लॉ वाला था, और मैं दादी बन जाऊंगी तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। yeah. But thank you So, so much yeah. for that. आपने इतने भारी शब्द, you have said so many things of so much gravity with so much ease, जो लोग समझते नहीं है। आपने इतने एक्सपीरियंस के साथ इतना कुछ हमें बताया, so thank you so much for that. आपने जैसे बोला that crime should be hated, not the criminal. That is absolutely so noble, and the work you are doing, ma'am, is so commendable. So thank you for being such a ग्रेट सर्विस टू द नेशन। आप जो कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है, एंड आई होप आप ये काम अपना करते रहो। We are getting some really great comments, guys. Thank you so much for the support. I'm like Navneet pointed out, Unnati pointed out that you are such a pillar of strength, and you are so young, so cheerful, and that smile. Is it fine, ma'am? I think it looks okay. Yes. Yeah. Yeah, What are the it looks comments? fine. Because I can't see it here. I don't know, somehow because of my connection. Yeah. What are the comments? No, It would be lovely to the know. comments are What are they great. saying? Everybody's lauding your cheerful spirit, smile, and the very wise words that you have mentioned. So everybody's really happy. Thank you so much. I feel honored to be able to sit across you and actually ask you questions. So we went through so many of these serious things, and you said you're a mother of 2, of 20 and 23. Achha, so can you tell us ki are your sons like kind of afraid of you? Because I am sure all of these children lie to their parents. Like I lie to my parents sometimes as well. But आपसे झूठ बोलना तो एकदम impossible सा लगता है. So ये कैसे how do they manage, and what is it like? मैं जगल करती हूँ माँ बनने में और बहन बनने में। इनकी बहन नहीं है। तो जब मुझे माँ बनना होता है तो मैं नॉक करती हूँ, सन कम आउट, enough. So yeah, so it's a time when you have to juggle. I think that what is important is that you juggle around. मैं disciplined mom हूँ, strict mom नहीं हूँ, lenient mom नहीं हूँ, मैं disciplined mom हूँ। मेरा घर एक जेल नहीं है, मेरे संस्कार जेल नहीं है। खुला छोड़ती हूँ, बट ये समझने की कोशिश करती हूँ दूसरे ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो मेरा बेटा ही या मेरे हस्बैंड है या मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरी पर्सनालिटी को और उनको समझने के बाद उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि वो भी एक अडल्ट हैं, उनकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनके अपने लॉज अपने तरीके से समझ सकते हैं। मैं जब वैल्यूज अपने बच्चों में डाल रही थी तो मेरी शादी 20 की उम्र में हुई है। मेरे दोनों बच्चे 23 की उम्र में पैदा हो चुके थे। जहां मैं खुद इतनी छोटी थी 20 की उम्र में, एंड इट इज एन अरेंज मैरिज। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं मानते थे कि अनुजा जो है वो अरेंज मैरिज। आज तक क्यों? मैं बिल्कुल बदमाश नहीं लगती हूँ, सीरियसली बिल्कुल नहीं लगती हूँ मैं, बट लोगों को हमेशा लगता था ये लव मैरिज करेगी। आज भी मुझे जब देखते हैं तो कहते अनुजा तूने लव मैरिज नहीं करी यार। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, लव की तो है, शादी में नहीं, शादी के बीच में कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है। सो इट इज समथिंग दैट यू नो, क्योंकि शायद मेरा नेचर ऐसा सा रहा है कि मैं खुशी चाहती हूँ, पॉजिटिविटी ही है मेरे में बहुत, और शायद इसी ने मुझे मेरी जिंदगी के एक पड़ाव पे लाकर खड़ा किया था जब, तो वो शायद पॉजिटिविटी ही थी कि मैं लाइफ एंड डेथ से बाहर निकल कर आ सकी। सो that was really important, I think, because that allowed me to evolve more, and that happened when I was 32 and 33. So 13 years of my marriage
has and that time I was staying in joint family also, and then I went into a nuclear family, and getting to know that I have pituitary adenoma. It is pituitary gland का मेरा मुझे ट्यूमर हुआ, और उसके अंदर जब मुझे जब पता चला तो I didn't had anybody. शायद मेरी जगह पे कोई और होता तो शायद हल्ला करता, रोता और बेहोश हो जाता, बट आई थिंक वो जो डिटेक्टिव वाला मेरे अंदर रहा है तो शायद पता नहीं, जब मेरे सामने जब डॉक्टर बैठी है तो शी जस्ट टोल्ड मी, अनुजा यू हैव ट्यूमर एंड इट इज ग्रोइंग, इट इज ब्लीडिंग, सो इट इज 20 mm इन यू. और मेरे साथ उस वक्त कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड नहीं थे उस वक्त मेरे साथ. आई वॉज द ओनली वन हु वाज लुकिंग. आई डिड नॉट क्राई एंड आई जस्ट लुक इट, बट कैजुअली मैंने लिया. एंड मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरे नी तक आते थे बाल बहुत लंबे थे. तो मैंने उससे सिर्फ पूछा, मैं कहा अच्छा अच्छा. कहती है अनुजा तुम रो नहीं रही हो, कुछ कोई रिएक्शन नहीं है, तुम ठीक हो, शॉक में तो नहीं चली गई हो तुम? तो मैं कहा नहीं, आई एम फाइन. 2 चीजें पूछ लूं? कहते हैं हाँ पूछो, बैठ के पूछो, बैठ पानी पी लो. मुझे कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके. आई डिडंट नो द रियलिटी, यू नो. आई जस्ट लाइक ओके, इट्स ओके. दैट्स दैट. मैं कहीं बात बताओ यार, गंजा तो नहीं करोगे ना? मेरे बाल तो नहीं निकल जाएंगे? तो कहते नहीं अनुजा, बाल नहीं निकलेंगे, हम नाक से करेंगे. सो इट्स ट्रांसनेसल, नाक से करेंगे. अब नया चीज आ गया. लाइक अच्छा, कैंसर तो नहीं है ना, मर तो नहीं जाऊंगी? नहीं, कैंसर नहीं है, बेनाइन है, पर इसका जो पोस्ट सर्जरी बहुत लीथल होती है. इसके बाद जो आप मेंटेन करोगे अपने आप को. तो this is their tumor. It just happened and then I got it operated in Apollo. Dr. S.K. Sugani was my doctor. Is amazingly good. और शायद कई लोग जानते होंगे भी उनको. और उसके बाद I flew to Philadelphia, अमेरिका, और वहां पे फिर मैंने साइबर नाइफ ली, रेडिएशन, जो अब चेन्नई में भी है, उस टाइम पर नहीं थी. तो इट वाज अ लेजर थिंग, रोबोट थिंग. और बाल मेरे कट चुके थे क्योंकि रेडिएशन होने वाली थी, और आई कट इट अप इतना शोल्डर तक. एंड आई वाज रियली, बट मेरे घर का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा था. मैं आज तक अपने ऊपर एक आंसू नहीं गिराया, बिकॉज आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम अ सर्वाइवर. और शायद इसीलिए मेरे पास जब कोई विक्टिम आता है तो मैं उसे एज अ सर्वाइवर के रूप में सबसे पहले सलाम करती हूँ और जज्बा देती हूँ उन्हें उन सब चीजों का कि अगर मैं निकल सकती हूँ तो आप भी निकल सकते हैं. और इससे सबसे बड़ी हिम्मत दूसरे को और खुद को दोबारा सुनते हुए नहीं आती है. अगर आप अपने लिए, खुद के लिए कसीदियां काटते रहोगे और अपने आप को 10 गालियां दोगे, 10 बातें कहोगे, मैं ये, मैं वो, मैं क्या, मैं, तो आप खुद भी सुनते हो उसे, बार बार सुनते हो. और क्योंकि आप उसको बार बार सुनते हो तो आप एनर्जीज को वापस अपने अंदर लेकर आते हो, और जो आपको नहीं भी होना होगा वो आपको हो जाएगा. फॉर मी इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट कि मैं पॉजिटिव रहूं, और मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ. अभी दिस इज गोइंग टू बी माय 3rd ईयर. मैं फ्रॉम रिलीजियस, मैं कृष्ण जी को बहुत मानती थी. तो क्योंकि मेरे को भाई नहीं है, मेरी 2 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ घर में सबसे. और आई जस्ट टर्न्ड स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि मैंने बुद्धिज्म को मानना शुरू कर दिया, मैंने गुरुजी को माना या मैंने साईं बाबा जी को माना. फॉर मी एक पर्सनालिटी को मानने की जरूरत नहीं थी. आई स्टार्टेड बिलीविंग इन द एनर्जी, एंड द एनर्जी इज फ्लूइड, एंड एनर्जी इज राइट नाउ लाइक मुझे आप लोगों से मिल रही है. एक बंदा जो इस वक्त ऑडियंस में है, उन सब की एनर्जी इतनी खूबसूरत है. और आप तो ये जानते ही हैं कि मैं बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ लेती हूँ. तो मैं इसके थ्रू मैं पढ़ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, और आई एम जस्ट टेकिंग इट इन. और सारी एनर्जीज इतनी प्यारी आ रही हैं, इतनी अच्छी हैं, उनका ऑरा इतना अच्छा है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है इस वक्त आप लोगों से बात करते हुए. और मैं बिलीव करती हूँ यार, काश यार ये ऑडियंस रियल में होती कि मेरा सेशन खत्म होने के बाद मैं उन सबको हक कर पाती. सो दिस इज देयर. और शायद इसीलिए कोविड से लड़ने के लिए लॉकडाउन के पीरियड में थ्रू आउट मुझ में बहुत हिम्मत रही, क्योंकि पॉजिटिविटी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द न्यू इंडिया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड द न्यू वर्ल्ड, क्योंकि विश्व, नए विश्व
का गठन होने जा रहा है। सिर्फ वही लोग एंटर करेंगे जो लोग बहुत पॉजिटिव हैं, जिनके कर्मा बहुत अच्छे रहे हैं। क्योंकि कई लोग इसको कहते हैं बहुत चीजें आ रही हैं निकल के, डेफिनेटली व्हेन आई क्योंकि आई बिलीव इन एनर्जीज, तो यस, this has really helped me to understand where I stand. Yeah, so I think अगर आपके अंदर डिप्रेशन नहीं है, और अगर आप ये मानते हैं कि अगर कोई भी चीज होगी और आप उसके लिए तत्पर हैं, आप कोई भी चीज के साथ लड़ सकते हैं और उसको हरा सकते हैं और आगे मूव ऑन कर सकते हैं। मेरे लिए क्या होता है कि मैं मूव ऑन नहीं करती हूँ, मैं मूव फॉरवर्ड करती हूँ। तो मेरे लिए मूव ऑन करने का मतलब है कि सब कुछ छोड़कर आगे मूव ऑन करना, और मूव फॉरवर्ड का मतलब है मेरे लिए कि सबको इकट्ठा करके साथ में मूव ऑन करना। So yeah, so this is what I think being a leader ahead, because this is really important, because with great power comes great responsibility. Spider-Man के पिक्चर में ही मैंने सुना था डायलॉग, और मैं ऐसे बिलीव करती हूँ। Yeah, so जसवी, मैं इतना बोल रही हूँ, तुम चुप करके सुन रहे हो, बेचारे सब लोग भी सुन रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, पता है। आई टेक ओवर द कन्वर्सेशन। आई एम द एंकर। अच्छी चीजें बोल रहे हो। नहीं, आपने इतनी अच्छी बातें बोल रहे हो that I could go on and on hearing, and everybody's been so kind to send such great comments. Thank you so much. And thank you, man. Like the energy from you is the best. Like आपने बोला कि audience की energy, मेरी energy, but आपसे the energy that is reflecting is so commendable. So that is great to hear. Ekdam. Thank you. Thank you. So let's do this final fun segment, and people want you to read my body language, which I am very scared of doing, but वो बाद में कर लेंगे. But let's do this rapid fire round. So I'm going to ask a couple of like 5-6 quick questions, and we'll hear your answers. ठीक है? So if you could easy होंगे ना? Yeah, एकदम easy होंगे. So if you could be an animal but not a dog, क्योंकि हमें पता है कि you have a dog, what would you be? Squirrel. Okay. What is the last have you ever seen a squirrel? बहुत क्यूट होती है जब वो नीचे उतरती है ना, अरे तेज का जुगाड़ू बहुत, जब वो नीचे उतरती है ना तो ऐसे उतरती है सुपरमैन की तरह, बैटमैन की तरह। सो एकदम सुपरमैन ऑफ द वे। पकड़ नहीं सकते तुम उसे एकदम। If you had to describe your younger self, जबकि आप अभी भी young ही हो, what would it be in 3 words? Younger self. Yeah. In 3 words. Yeah. Charismatic. Okay. Magnetic. एकदम. Sensual. Yeah. Jokes apart. Very well powered and strong minded. Yeah. Hey, that reflects from your personality anyway. If a genie could grant you 3 wishes, what would you ask? 3 wishes? Yes. I will live this life again and again. That is so. I think that sums up everything. और मैं हमेशा से तत्पर रहूं उन लोगों के लिए जिनको मेरी जरूरत है। मेरी फैमिली मेरा हिस्सा जरूर है, पर इस धरती पर, अर्थ पर मेरे आने का एक मकसद है, और हम सब के आने का मकसद है। कुछ लोगों ने अभी तक अपने होने का वजूद पता नहीं लगा पाया कि उनका वजूद क्या है और यहाँ क्यों है। शायद आई एम वन ऑफ द लकी वंस, और मुझे पता चला, थोड़ा लेट पता चला पर पता चला है। और अब मैं रेस अगेंस्ट टाइम है, क्योंकि जो मेरा मेडिकल इशू है वो दैट इज देयर विद मी, स्टिल देयर विद मी, सो इट टेक्स मी विद इट। आई वांट टू डू समथिंग सो दैट जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरी ऑडियंस, मेरे प्यार करने वाले, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, और जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ,
फिर भी वो लोग मुझे जानते हैं और इतना दिल से प्यार करते हैं। मैं बार बार जन्म लूंगी आप लोगों के पास वापस आने के लिए, और जो आज हूँ फिर से यही बनूंगी, बार बार बनूंगी, क्योंकि ये मुझे मेरी हस्ती बताते हैं कि मैं क्या हूँ। और ग्राउंडेड रहना ये सबसे जरूरी है, क्योंकि तभी आप लोगों से बात कर पाओगे, वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। हवा में उड़ने से आपके पंख बहुत जल्दी कट जाते हैं और आप बहुत जोरों से नीचे गिरते हो। सो आई लव टू बी ऑन ग्राउंड, मेरे पैर जमीन पर रहें, पर क्योंकि मेरी आई डेयर टू ड्रीम एंड ड्रीम टू डेयर, इसलिए मेरी आंखें हमेशा आसमान की तरफ होती हैं। और मैं उड़ना जानती हूँ, बट इस तरह से उड़ती हूँ कि अगर वापस जमीन पे आना पड़े तो अपने वजूद को ना खोऊं। तो ये एक बहुत जरूरी रहा है मेरे लिए। एकदम थैंक यू मैम। लाइक अगर मेरे पे होता तो मैं सिर्फ पूरा टाइम आपको सुनता रहो, एकदम थैंक यू बोलता रहो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो पागल हो जाओगे। नहीं, एकदम पागल हो जाओगे तुम। नहीं। हाँ, सो अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, सो व्हाट वुड बी योर डिजायर्ड प्रोफेशन? आप इतने कुछ हो, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, आपको एक कुछ और चूज करना होता तो क्या चूज करते? सिंगर होती, डांसर होती, शेफ होती। वाह वाह। हाँ, और हाँ, और यार एफबीआई में काम करने का बड़ा मन है मेरा। उसके लिए यूएस सिटीजनशिप चाहिए। सच में भाग जाना चाहती हूँ कई बार। फिर मैं कहती हूँ अनुजा, अगर हम सब लोग ऐसे भाग जाएंगे तो मेरे भारत को अगर जरूरत है मेरी, एकदम, तो कौन संभालेगा इस भारत को? एकदम। और तो इसलिए या तो मे बी, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब I love to sing, so and I love to dance, and because this is me, I'm alive. लोग कहते हैं कि जी लो यार, जिंदगी एक दिन मिलनी है। मेरे लिए मौत एक बार ही आनी है। जिंदगी मेरे पास है और हर रोज जी रही हूँ, और अगर उसके दम पर अपने नाम पर नहीं जीऊं तो जीने को जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। So, yeah. ग्रेट, कमेंडेबल। विद दैट हम लोग का रैपिड फायर तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया। लेट्स डू दिस। कैन यू, इज इट पॉसिबल टू रीड बॉडी लैंग्वेज वर्चुअली? तुमसे मैंने बात करी है जसवीर, और अगर मैं तुम्हारे बारे में बोलूं तो जैसे कि तुम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, और very you have a lot of values in you, और तुम अपनी वही अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करके रखते हो। बहुत ज्यादा लोगों से बहसते नहीं। तुम्हें लगता है कि कभी कभार अगर अपने रिश्ते के लिए अगर चुप रहना पड़ेगा तो बेटर है, मैं चुप रह लेता हूँ। और अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हो, अपने बड़ों को काफी मानते हो, और उसके लिए अगर तुम्हें अपना कोई रिश्ता गंवाना पड़े तो तुम गवाओगे। तुम्हें पसंद है सक्सेस, पर इस नापतोल पे नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाए। So, I don't know, and you like food, but ऐसा नहीं है कि तुम खाने के लिए जिंदा रहते हो, but food is a part of you. You're a soft hearted person. किसी का दुख देखते हो तो अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है करने की कोशिश करते हो। सारी चीजें पॉजिटिव नहीं है तुम्हारे लिए। This is bad. How come that's possible? Bye. Yeah. But thank you so much for that, ma'am. Again, like I don't know how many times I've said thank you, but that's how the nature of this conversation has been. शुक्र है तुमने मुझे ये नहीं बोला गाना गा के सुनाओ, बच गई मैं। वो भी बोल देते, वो तो like we would love to hear from you जितना भी आप बोलो, because it's been so good. क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं। जज बेहोश। सोचो मैं जज के पास जाके गाना गा रही हूँ, जज बेहोश।
We have a Yeah. request in fact from Mr. Pankaj कि आप एक लाइन गा के सुनाई दो अब। अरे बेहोश हो जाओगे पंकज, क्या कर अरे रहे हो? कोई बात नहीं। सीरियसली? एक लाइन तो हो ही जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, दिल को तरसाए, कोई तो आए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। Wow, 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 wow. If we can't hear the claps, but I'm sure everybody in the audience is clapping abhi. So thank you. Thank It's you, been thank great. you. It's been great. इतने hearts भी आ रहे हैं. With that, guys, we'll take a last couple of questions. If anybody has anything, it's been such a great evening with the Anuja Kapoor, and it's been such an honor. So, अगर कोई questions है, please drop it in. Thanks, Pankaj, Lakshmi, Riya, Khushbu, Navneet, and everybody else who joined. I'm sorry for not being able to take your name. And thank you for making this evening a lovely one. This midweek conversation with you has made it an absolute great evening amongst such tough times. अगर आपके जैसे personality हो तो कुछ भी tough नहीं है. And thank you for teaching us that. So it's been great. I hope you had as much fun as I did, because I absolutely did, and I'm sure everybody else did. जसवीर, yes, thank you so much. और मैं आपके इसी चैनल के थ्रू मैं ये बोलना चाहूंगी उन सब ऑडियंस का जो लोग मेरे साथ आज जुड़े और मुझे अपनाया, आज अपने घर में भी लेकर जा रहे हैं, अपने दिल में रख रहे हैं, और ये जो प्यार आपने मुझे दिया है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग मुझे देते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसे पूरा कर सकूं, और मैं तत्पर रहती हूं और हमेशा रहूंगी। मैंने पहले भी कहा है, अगर मुझे कितने भी जन्म लेने होंगे तो मैं वापस आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ लोग सेल्फलेसली काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, ह्यूमैनिटी से सबका विश्वास उठ जाएगा। और ऐसे कई मेरे दोस्त हैं, और आज तो बहुत लोग साथ में जुड़े हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऑडियंस के साथ जिंदा होती हूँ। मैं थिएटर पर्सन हूँ, सिनेमा नहीं, इसी तरीके से मैं प्रिंट पर्सन हूँ, डिजिटल नहीं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी के साथ सामने से सामने कनेक्ट करती हूँ, और ये एक बहुत प्यारा टाइम लगता है मुझे कि जब मैं कुछ कर पाती हूँ। और मुझे जसवीर, मुझे लग नहीं रहा था कि हम लोग इतना एंजॉय करने वाले हैं इसके अंदर, बट मुझे इस बात का विश्वास पहले से था कि तुम्हारे से बात करने के वक्त थी कि कमाल के लौंडे हो। और थैंक यू सो मच। और थैंक यू सच में जसवीर, थैंक्स यार। थैंक यू सो मच। इट इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मतलब आज फिर से जिंदा हो जाती है ना जैसे, तो आई एम फीलिंग अलाइव अगेन, एंड सो मेनी एनर्जीज, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। आई वुड जस्ट से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। और अगर कभी कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में हो तो जसवीर से बोल दीजिएगा, उनसे पूछ लेंगे। और अगर रहा तो जरूर वापस लाइव आपके लिए आऊंगी और आपके क्वेश्चंस के साथ। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और लॉट ऑफ किसेस एंड हग्स। मैं सामने नहीं हूँ, नहीं तो सबको पकड़ के yes, thank you. Thank you for being yourself and so cheerful, so jolly, and everything that you're doing is great. Thank you so much for a lovely conversation. Great. Stay blessed. Thank you. See so you much. guys. Yeah. Bye. Thank Thanks you. for joining. Bye.